Hello friends, we are back and today we will study about the food web basically. So we will talk about food web today, जिसको आप खाद्य जाल बोलते हैं, right? So food web is nothing, it's basically a network of food chains or interconnected food chains can be termed as food web. And in this food web या खाद्य जाल जिसको बोलते हैं, different types of organisms are connected at different trophic levels. अलग-अलग connection होगा उनका with each another. So there are number of options of eating and being eaten at each trophic level. So it provide a wide range and wide stability to the ecosystem. Whenever you talk about the food web, which is not provided by the individual food chain. Individual food chain is not that much stable, but a food web is quite stable. बहुत ज़्यादा stable होता है, right? For examples, I will show you a figure where we have taken interconnected food web of Antarctic ecosystem, right? So Antarctic Sea and the continental land, how they are connected, right? So you can see here that we have this, I should do it smaller, right? So you can see here that each and every organisms are quite well connected, that phytoplankton can be taken by herbivore zooplankton, they can be also taken by krill, and then krill be taken by the snow petrel. Then krill can also be taken by carnivore planktons, and herbivore zooplankton can be taken by carnivore plankton. Then carnivore plankton can be taken by fish. Fish can be taken by emperor penguin, then leopard seal, then killer whale, and then human. So there are a lot of interconnection available between there are a lot of interconnection available between a food web. You can see in this interconnected food web, right, where we have connected many of the food chain. बहुत सारी खाद्य श्रृंखला इसमें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग organisms हैं. So this provide a more stable, right? काफी ज्यादा stability ये provide करता है, right? So that we have to remember. Then so this was one of the example of the food web as we have seen. Then there comes a question of major interest that if we talk about, अगर हम ये पूछें कि जी food web ही क्यों, ecosystem में why food web, so why nature has evolved food web in an ecosystem. पारिस्थितिकी तंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है खाद्य जाल का. सो इंस्टेड ऑफ सिंपल लीनियर फूड चेन, जो हमारे पास खाद्य श्रृंखला भी तो थी, क्या जरूरत है हमें फूड चेन पे आने, फूड वेब पे आने की, खाद्य जाल पे, बिकॉज फूड वेब गिव ग्रेटर स्टेबिलिटी to the ecosystem. A linear food chain, if one species become extinct, other species will suffer. कि let us suppose food chain में 3 और 4 trophic level ही है, तो top level पे जो है, अगर वो organisms या वो जीव जंतु वहां से चला जाएगा, then it will be very difficult to sustain that food chain, the species in subsequent trophic levels. On the other hand, food web में क्या है, number of option available at each trophic level. So even if one species will go, this will not affect the other trophic levels so seriously. We will understand this with the help of an example. We can see that. So for examples, if I will take this as an example, like simple food chain of Arctic tundra ecosystem की Cladonia जो है आपका, it is basically a sort of lichen, right? It is basically a sort of lichen which is eaten by reindeer, and then reindeer basically eaten by man. Or grass, you can see there, the grass will be eaten by caribou. Caribou is basically a species of deer, right? Different variety of deer that will be eaten by wolf. So if due to some stress, the population of reindeer or the caribou falls, it will leave the little option for man or the wolf to eat. तो इन लोगों पे थ्रेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक तरफ मैन पे और एक तरफ वुल्फ पे. सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल जो फूड चेन है वो कभी भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है. हमेशा लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जो लोग लाइक omnivorous variety के होते हैं, which can take herbivore food also and carnivore food also, they have more options, right?
rather than simply having herbivore or the carnivore. So it is something like that, that I should have an option. So food web provide us more option to connect it to the food chain and to survive, right? So yes, food web is quite complex, right? But it provides stability. So food web basically provide stability. Okay, it provide the stability to the ecosystem. खाद्य जाल जो है पारिस्थितिकी तंत्र को स्टेबल करता है, right? उसको दृढ़ता प्रदान करता है. On the other hand, if I will talk about food chain, इंडिविजुअल फूड चेन, अगर इंडिविजुअल खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड है, राइट? तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं. इफ दैट विल नॉट एग्जिस्ट, दैट फूड चेन विल नॉट एग्जिस्ट, देन यू डोंट हैव अ ऑप्शन. आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, योर सर्वाइवल विल बी इनटू थ्रेट. सो दिस इज द रीजन, राइट? आई होप एवरीवन हैव understood this well. So now let's move to what is the significant, कि महत्व क्या है, what is the significance, ये महत्व क्या है फूड चेन का और फूड वेब का, कि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और फूड वेब, खाद्य जालों का क्या महत्व है. सो फूड चेन एंड फूड वेब्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इकोसिस्टम बिकॉज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो ये क्या करते हैं हमारे लिए, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है फूड चेन और फूड वेब से, राइट? और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसको आप कहते हैं क्या हिंदी में, पोषक तत्वों का चक्रण, राइट? सो इन्हीं के थ्रू हमारा ये कंप्लीट होता है. So nutrient cycling and energy flow are the two functions which takes place through food chain and food web. That's why they are important and significant for us. This is an important point, right? This is a quite important point. And let's come to the next. Then we can see some more additional information here. The food chain also help in maintaining and regulating the population size. जनसंख्या का जो साइज, जनसंख्या का जो साइज है, ठीक है, या जो उसका आकार है, उसको भी ये रेगुलेट करता है, राइट? अब जैसे फूड चेन या फूड वेब में आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नेक्स्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो फूड बन रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई it also regulate the population size of different animals and thus help in maintaining the ecological balance, right? तो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है हमारे लिए, राइट? सो फूड चेन शो अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. ये भी आपको ध्यान रखना है. बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है. बायोमैग्निफिकेशन इस तरह से है जैसे कि लेट अस सपोज कि हमने एक एक्वेटिक इकोसिस्टम लिया और वहां पे कोई पोल्यूटेंट है या प्रदूषक है, जैसे एग्जांपल डीडीटी ले लिया, और जो उसमें फाइटोप्लैंक्टन है, सपोज करिए उसकी बॉडी में यदि 2 ppm है पार्ट्स पर मिलियन, एंड उस फाइटोप्लैंक्टन को जो जू प्लैंक्टन खाएगा उसकी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा उससे, क्योंकि जो जू प्लैंक्टन है वो बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा. मान लीजिए उसकी बॉडी में 4 ppb हो गया. देन उस जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाएगी, उसकी बॉडी में 6 ppb हो गया, और उस स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी, एंड लार्ज फिश दैट इज टेकन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एट द हायर ट्रॉफिक लेवल. तो ये बढ़ता चला जाएगा विद ईच ट्रॉफिक लेवल. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, राइट? तो ये बढ़ता चला जाएगा. सो बायोमैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The successive increase of a pollutant or harmful substance, right, across the body of the organism at each trophic level. मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे या हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर बढ़ता चला जाएगा concentration, and this is called as biological magnification. So with increase in trophic level it will increase. चाहे कोई भी pesticides हो, generally this is shown by the pesticides such as DDT. DDT का काफी फेमस एग्जांपल है इसमें, राइट? एंड देयर आर सेवरल पेस्टिसाइड्स. हैवी मेटल्स भी शो करते हैं बायोमैग्निफिकेशन, राइट? है ना? तो ये हो गया आपका. एंड देन इसको जैव आवर्धन भी बोलते हैं आप हिंदी में ना. द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज जैव आवर्धन, राइट? क्योंकि वो सब्सटेंस बढ़ता चला जा रहा है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे अक्रॉस द फूड चेन, राइट?
जो आपकी खाद्य श्रृंखला है। मेटल्स, हेवी मेटल्स जो होते हैं वो भी आपके जैव आवर्धन शो करते हैं, बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं। अदर केमिकल्स व्हिच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, सच केमिकल्स आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये टूटेंगे तो है नहीं, ब्रेक डाउन तो होंगे नहीं, सो दे विल कीप पासिंग ऑन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू एन अदर, at each successive trophic level they keep on increasing in concentration. So हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, फूड चेन में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, राइट। एंड दिस फिनोमेना, ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या हिंदी में इसको बोला जाता है जैव आवर्धन, राइट। सो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। एक केस स्टडी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीडीटी है उसकी केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बिल्डअप डीडीटी का किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल इफ आई विल सी हाउ डीडीटी कैन बी बिल्डेड अप इनटू द ऑर्गेनिज्म, या फिर किस तरह से उसका जैववर्धन होगा, अ बिल्डअप ऑफ डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी को अगर हम समझना चाहें, ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये आपको पता ही होगा। सो डीडीटी इज बेसिकली ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, अच्छा ऑर्गेनोक्लोरीन, क्लोरीन पेस्टिसाइड, राइट, है ना। तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है ये, राइट। एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड विद सम ऑफ द बर्ड्स लाइक ऑस्प्री, ये एक तरह का बर्ड है, पक्षी है, राइट। फाउंड टू सफर अ शार्प डिक्लाइन, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई इन देयर पॉपुलेशन। व्हाई? बिकॉज द यंग वंस ऑफ दीज बर्ड्स वर फाउंड टू बी हैच आउट इन प्रीमेच्योर कंडीशन। इनके जो बच्चे होते थे नवजात, वो जो एग है या अंडा है, वो प्रीमेच्योर हैचिंग उसकी हो जाती थी कि समय से पहले ही, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें समय से पहले ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिकॉज वो एग क्या है, वीक है। बेसिकली ये डीडीटी करता क्या है, जैसे एग शेल है जो आपकी, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, तो ये कैल्शियम 2+ आयन के साथ जो है इंटरफेयर करता है डीडीटी। जो एग का शेल होता है उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वहां पे जो कैल्शियम 2+ आयन है उसके साथ इंटरफेयर करता है। अब आप कहेंगे डीडीटी आया कहाँ से उस बर्ड के पास, ये इसी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से आया, right? So this was the later found that the biomagnification of DDT through the food chain जो खाद्य श्रृंखला का वो पार्ट था, बर्ड पक्षी, उसके थ्रू उसमें डीडीटी आया। डीडीटी sprayed for pest control in very low concentration, but its concentration increase along the food chain through phytoplankton। तो जो आपके पहले फाइटोप्लैंक्टन थे, राइट, है ना, जो आपके जल में रहने वाले स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो थे, वहां पे ये पहुंचा डीडीटी। फिर कुछ जू प्लॉन्क्टन में आए, देन जो फिश थी उसने इसको लिया, इस फिश को बर्ड्स ने ईट किया, स्मॉल फिश को। सो द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी वाज मैग्नीफाइड सेवरल थाउजेंड टाइम्स, बर्ड्स व्हिच कॉज थिनिंग ऑफ शेल्स। मैंने आपको बता दिया है कि ये कैल्शियम 2+ के साथ इंटरफेयर करता है, राइट, causing the death of the young ones. It becomes very clear from the above instance that the animal occupy the higher trophic level are at a greater risk of biomagnification। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, कि जो भी किसी खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन में हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे होगा, ऊंचे ट्रॉफिक लेवल पे होगा, उसको रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सब्सटेंस की वो उसकी बॉडी में बिल्डअप होने की मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बीइंग किसी फूड चेन में टॉप पे है तो ह्यूमन बीइंग को रिस्क ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग कंज्यूमिंग मिल्क, दूध हम लेते हैं, एग लेते हैं, मीट लेते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल पे हैं हम, सो वी हैव टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि फलों को आप धो के खाइए, सब्जियों को आप धो के खाइए, उसमें पेस्टिसाइड डल रहा है, केमिकल डल रहा है, हेवी मेटल्स काफी आ रहे हैं, तो they create problem because of this. So if we wish to save ourselves from biologically magnified toxic level, we have to take care of these pesticides and all. It is a very important concept and a general life concept we should connect with it. So this is for today, and in the next class we will surely bring up the ecological pyramid for you guys, right? So we will end up this here, and hope you have enjoyed the lecture, and you should keep working hard and preparing hard for your exams, right? Thank you guys.